آج کے شو میں۔ کرونا کیسز پاکستان میں ہر نیا دن گزشتہ کل سے زیادہ خطرناک۔ پاکستان میں کرونا متاثرین کی تعداد چین سے بھی زیادہ۔ حکومت کا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر جرمانوں کا فیصلہ۔ السلام علیکم، بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ آج ایس او پیز کے حوالے سے کچھ بات ہوگی۔ کرونا وائرس جس طرح بڑھ رہا ہے پاکستان میں، ہر گزرتا دن جو ہے، نیا دن جو ہوتا ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ نمبرز بڑھ رہے ہیں اس وقت، ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس، جو وینٹیلیٹرز ہیں، آکسیجن ہے، بیڈز کی اویلیبلٹی، بہت سے اہم سوالات اٹھ رہے ہیں۔ حکومت کی اب یہاں سے اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا لاک ڈاؤن مزید سخت ہوگا؟ بالخصوص صوبائی سطح کے اوپر کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں؟ ایس او پیز کی سختی سے عمل درآمد کے لیے کیا جرمانے ہوں گے؟ کیا کیا نئی اسٹریٹجیز ہیں؟ مارکیٹ سیل ہوں گی؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو پروگرام میں ہم اٹھانے جا رہے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں ترجمان پنجاب حکومت عثمان سعید بسرا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ لاہور میں رانا ارشد صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب بھی اس پروگرام میں ساتھ موجود ہوں گے۔ عثمان بسرا صاحب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے، بسرا صاحب کیا فیصلہ ہوا ہے؟ اب آگے کیا، یعنی عمل درآمد پنجاب حکومت کی طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ سختی ہوگی لاک ڈاؤن میں؟ کیا فیصلہ کیا آپ لوگوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک چیز آپ کے جیسے علم میں ہے کہ جزوی لاک ڈاؤن جو ہے اس کو چلایا جا رہا تھا، اور لاک ڈاؤن میں جو ایک بڑی سختی تھی اس کو کم کیا گیا۔ اول تو اس میں یہ تھا کہ کیونکہ گندم کی فصل بالکل آپ دیکھا مارکیٹ میں کھیت سے لے کے منڈیوں تک، اور منڈیوں سے لے کے پھر آگے ان کی سٹوریج تک کا ایک مرحلہ تھا، کیونکہ ہم آلریڈی بڑا ایک مشکل سے گزر رہے تھے۔ اگر ہم خدا نخواستہ پہلی ایک فیز کے اندر نرمی نہ کرتے گندم کی فصل کے لیے، تو ایک نیا انسانی المیہ جنم لے سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد رمضان آ گیا۔ رمضان کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ملک کے اندر، جیسے پرائم منسٹر نے بار بار کہا کہ حکومت کی وزڈم یہ ہے کہ آپ بہت لمبے عرصے کے لیے معاشی سرگرمیوں کو معطل نہیں رکھ سکتے۔ وہ اکانومی، وہ معیشت جو آلریڈی ناتواں ہے، وہ معیشت جو پہلی ورلڈ پور میں پھنسی ہوئی ہے، وہ معیشت جو پہلی قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اس کو لمبے عرصے کے لیے مکمل بند نہیں کی جا سکتا۔ ہم نے اس کو کھولا، لیکن اس میں خان صاحب ایک چیز جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے، اس وزڈم کے ساتھ ایک پریکاشن تھی، ایک وارننگ تھی کہ ہم اس کو کھول رہے ہیں، لیکن یہ ایس او پیز ہوں گے تو ہم اس کو ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ دیکھیں گے۔ اگر ایس او پیز پہ عمل ہوا تو ہم اس کو فردر کھولیں گے۔ خطرہ صرف یہ تھا کہ لوگ کہیں خدا نخواستہ، معیشت تو ہماری نیچے جا ہی رہی ہے، $50 ارب کے قریب ہماری معیشت کو اس میں نقصان ہوا ہے پچھلے 3 مہینے کے اندر جب سے کرونا آیا ہے۔ تو ایک وزڈم یہ تھی کہ ہم اس کو ٹیسٹ کریں، دیکھیں کہ کیا لوگ اس کو رسپانسبلٹی لیتے ہیں، اور لوگوں سے زیادہ بھی کیا یہ ہماری جو تاجر تنظیمیں ہیں، جو مختلف قسم کے ہم سیکٹرز کھولیں گے، اس کے اندر جو رسپانسبل لوگ ہیں وہاں کے، کیا وہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن مجھے تھوڑا سا دل ہمارا دکھتا ہے، بینگ دا پاکستانی، اب میں حکومت کی ایک طرفداری نہیں، بینگ دا پاکستانی میرا بھی اور آپ کا بھی دکھتا ہوگا کہ لوگوں نے اس طرح سے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا، اور بالخصوص ہمارے جو تاجر برادری ہے اس کے اندر جو ان کی ریپرزنٹیشن ہے، جو ان کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کروایا۔ دیکھیے، ہم بڑی تنقید کرتے ہیں اپنے عموماً اپنے علماء اکرام کے اوپر، لیکن مساجد کے اندر جب ائمہ اکرام کی ذمہ داری آئی کہ آپ نے ایس او پیز کے اوپر عمل کروانا ہے، شاید ہی کوئی ایسی مسجد ہو جس کے اندر نماز کی اجازت دی گئی، جمعہ کے اجتماعات کی اجازت دی گئی، عید کی اجتماع کی اجازت ہوئی۔ ایس او پیز پہ آج بھی سختی سے عمل کیا جا رہا ہے، اس لیے آپ دیکھیں مساجد الحمدللہ کھلی ہوئی ہیں۔ لیکن آج ہم نے فیصلہ کیا، جب ہم دیکھا کہ ایک تو لوگ ایس او پیز کے اوپر عمل اس طرح نہیں کر رہے، تاجر تنظیمیں ہمارے ساتھ اس طرح سے جو کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی، دیکھیے یہ کمٹمنٹ پہ، اس کمٹمنٹ کے اوپر اجازت دی گئی تھی جزوی طور پر کھولنے کی، کہ وہ ایس او پیز کے اوپر وہ خود عمل کروائیں گے عوام سے، اور پھر وہ اپنے کسٹمرز کو لیں گے، لیکن ایسا جنرلی نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک تھوڑی نہیں، بڑے درد دل کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، نہیں ہوا ہے۔ آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر آپ ایس او پیز پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم دوبارہ آپ کی دکانیں بند کریں گے، اگر آپ ایس او پیز پہ عمل نہیں کریں گے ہم آپ کے مالز بند کریں گے، اگر آپ ایس او پیز پہ عمل نہیں کریں گے ہم مارکیٹس بند کریں گے۔ جو ہی فیصلہ ہوا ہے، اور آپ دیکھیے کہ لاہور میں فیصلہ ہوا، حکومت پنجاب نے کیا، اور ایس او پیز پہ عمل نہ کرنے والی 20 منٹ کے اندر ایس او پیز پہ عمل نہ کرنے والے لوگوں کو، تاجروں کو، دکانیں بند ہو گئیں۔ گجرانوالہ کے اندر بڑی مارکیٹ ہے، سیٹرل ٹاؤن مارکیٹ، میں اتفاق سے آپ کے پروگرام سے پہلے گجرانوالہ تھا، وہیں سے آیا ہوں۔ 15 منٹ کے بعد جب یہ فیصلہ ہوا
تو ہماری جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے, ہمارے ڈی سی او صاحب اور ہمارے اے سی صاحب وہاں موجود تھے, اور جتنی ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو رہی تھی دکانیں بند کرائیں, شہر کی سب سے بڑی دکانیں پرماننٹ بند کروا دیا ہے. اور یہ بند کی ہیں عثمان صاحب, یہ مطلب وقتی طور پہ بند کی ہیں, ٹیمپرری ہوئی ہیں, یا پھر یہ آپ نے اور کوئی جرمانے بھی عائد کیے ہیں دکانوں کے اوپر جو آپ نے بند بتا رہے ہیں جو آپ کی ہیں دکانیں؟ آپ دکانوں کے مالکان کو جرمانے عائد کیے گئے ہیں. نمبر 1, جو بند کی گئی ہیں اب ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو دوبارہ بتائیں گے کہ آپ کی دکانیں کب کھلیں گی, کیونکہ آپ ایس او پیز پہ عمل نہیں کر رہے تھے. اب کیونکہ جب گورنمنٹ سختی کرتی ہے تو دوسری طرف لوگ دیکھیں تاجر تنظیمیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں. تو ہم نے تاجر تنظیموں کو, جیسے آج میاں اسلم اقبال صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی, ہمارے منسٹر سے بھی بات کی. دیکھیے پاکستان کے لوگوں کا مفاد, پاکستان کے لوگوں کا مفاد عامہ, لوگوں کی جان مال کی تحفظ کی ذمہ داری سب سے پہلی ہے. یہ حق سب سے پہلے ہے. کاروبار کا حق اس کے بعد کا ہے. آپ نے کاروبار کھولنا ہے, ہم نے کھولا, آپ نے کہا کھولیے, ہم نے کھولا, لیکن اب ایک ذمہ داری, اور میں دوبارہ یہ آپ کے پروگرام کے ذریعے لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے آج حکومت سے جو ہو سکتا تھا آپ کے وزیر اعظم حکومت نے اس سے بڑھ کے آپ کے ساتھ کیا. لوگوں کے ساتھ امداد دینے کا معاملہ ہو, ناتواں معیشت کو سہارا دینے کا معاملہ ہو, پیرا میڈکس کی جان کی حفاظت کا معاملہ ہو, سامان کا معاملہ ہو, کرونا سے لڑنے کی حکمت عملی ہو جس کو دنیا نے ریکگنائز کیا, آپ کی حکومت نے سب کچھ کیا. اب آپ پاکستان کے لوگ بھی اپنی حکومت اور اپنے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے کیجئے. ایس او پیز ایک واحد چیز ہے, احتیاط ایک واحد چیز ہے جو اس کے خلاف ایک فرسٹ ڈیفنس ہے. اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز ابھی نکلی نہیں. تو ایک چیز بڑی کلیئر ہے, آپ نے ایک تو کہا کہ آپ دکانیں بند, آپ نے مارکیٹیں بند کی ہیں, سیل کی ہیں, اس پر اب کیا مساجد کی طرف بھی اور جہاں جہاں اجتماع ہوگا وہاں پر دوبارہ سے ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد پنجاب میں ہو جائے گا شروع؟ آپ حکومت کے ترجمان کے طور پر بتا سکتے ہیں ہمیں؟ میں آپ کو یہ حکومت کے ترجمان کے طور پہ بتا رہا ہوں خان صاحب کہ مساجد میں عامہ اکرام جن کی یہ ذمہ داری تھی, کوئی ایک واقعہ بھی شاید ہی کوئی اکا دکا واقعہ رپورٹ ہوا ہو جہاں ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوئی, دوبارہ نہیں ہوئی. اگر ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوگی جیسے ابھی مارکیٹس میں اور بازاروں میں ہوئی, جیسے مالز میں ہوئی, اگر مساجد میں ہوگی تو دوبارہ گورنمنٹ سوچے گی کہ کیا ان کو بھی ہم اجازت دیں نماز کی, اس طرح سے اجتماع کی یا نہ دیں. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, آپ کے دین میں بھی ایک چیز بڑی واضح ہے, جان کی حرمت اور تقدس سب سے اوپر ہے. پاکستان کے لوگوں کی صحت, جان و مال کا تحفظ حکومت پاکستان اور پرائم منسٹر عمران خان کا اولین ترجیح ہے, اور اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اگر ہم نے پرائم منسٹر نے ایک کامن وزڈم کی وجہ سے اور جو ان کی پوری دنیا نے فالو کی, ہم نے نرمی کا فیصلہ کیا تاکہ معیشت بند نہ ہو. اب لوگوں کو بالخصوص اور ہماری تاجر برادری اور جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی بالعموم اس کے اوپر ایس او پیز کے اوپر عمل کروانا ہوگا, تبھی ہم اس کو کنٹینیو کر پائیں گے, ادروائز اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ ایک طرح سے حکومت اب سختی کی طرف بڑھ رہی ہے, یہ اہم بات ہے, اور کچھ اہم فیصلے جو ہوئے ہیں اس کے بارے میں آگاہ آپ کر رہے ہیں. ترجمان پنجاب ہوگا تو عثمان سعید بصرہ صاحب, کچھ مارکیٹیں سیل بھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا. مسلم نون کا موقف رانا ارشد صاحب, تو یہ اب صحیح ہوا ہے اب فیصلہ, یا پہلے صحیح تھا پہلے غلط تھا؟ رانا صاحب اب آپ کچھ اس پہ روشنی ڈال سکیں گے, آپ کی نظر میں کیا ہوا ہے یہ جو آج ہوا ہے یہ عمل درآمد؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سیاح بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے ٹی وی چینل کا, اور جیسے آپ کے سامنے بھی فگرز ہیں کرونا کی, اور اسی طرح 22 کروڑ عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ جب 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا, پھر 13 اور 14 مارچ کو اسکول اور کالج بند کر دیے گئے اور لاک ڈاؤن کی طرف بڑھتے گئے. اب میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آج کے 15 دن کی تعداد دیکھ لیں اموات کی اور مریضوں کی, اور پچھلے 3.5 ماہ کی تعداد دیکھ لیں تو وہ برابر ہوگی. جب ہم لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم کنفیوزڈ ہوں گے جب ہم کہیں گے کہ لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے. جب 14 اپریل کو کنسٹرکشن انڈسٹری اوپن کر دی گئی تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مزدور کے لیے ٹرانسپورٹ تو بند تھی, جس ویگن اور بس پہ اس نے بیٹھ کر آنا تھا وہ تو عید سے 2 دن پہلے کھلتی ہے. وہ ٹرین تو بند تھی جس سے اس نے دیہات سے اس ٹرین پر بیٹھ کر آنا تھا مزدوری کے لیے. میں کہنا چاہتا ہوں اچھی بات ہے, گورنمنٹ نے ڈیسیژن کیا. اب عمل درآمد کی اگر میں عرض کروں گا, مجھے امپلیمنٹیشن, مجھے ایس او پیز پر عمل ہوتا بالکل نظر نہیں آ رہا. بلکہ آج چیف منسٹر صاحب جس جگہ پر پھر رہے تھے, اگر چیف منسٹر صاحب اور پھر یہ 2-3 ہفتے پہلے ادھر ایک حسین چوک میں ایک انڈر پاس کی اناگوریشن ہوئی ہے,
वहाँ पर उनके साथ वुज़रा भी शामिल थे। जब मेन फिगर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर अगर मेन फिगर्स एसओपी पर अमल नहीं करेंगे तो आम आदमी क्या करेगा? आपने देखा जब नादरा ऑफिस खुले तो लेने नहीं, कांधे के साथ कांधा लगा हुआ था। फिर जब एहसास प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुताबिक जब खवातीन को रात को पैसे दिए गए, पहले वो पैसे तो बैंक के जरिए इजी लोड के जरिए, लेकिन राणा साहब ये सब तो हमने देखा, ये गुजर गया। अब यहाँ से क्या है राणा साहब? नहीं हुआ नहीं, अब क्या, अब जो अमल दरामद का इन्होंने कहा है और सख्ती से कह रहे हैं ये मार्केटें बंद कर दी हैं, नाउ इट इज पॉजिटिव, अब सही हो गया फैसला, अब सब तो सही है ना जो पंजाब हुकूमत ने किया एकदम? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये बात जो पहले दिन शबाशी साहब ने की थी, मुकम्मल लॉकडाउन फॉर 20 या 16 डेज, अगर ये 20 दिन 25 दिन 1 माह के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होता, जो मुकम्मल लॉकडाउन तो हुआ था राणा साहब, लेकिन उसका फिर मईशत भी तो आपने देखा, उसका हाल क्या हुआ मईशत से? मुकम्मल लॉकडाउन जब हुआ था उसका मईशत पर असर भी आपने देखा था, क्या हुआ था, किस तरह चल रहा? वो तो शेख रशीद साहब ने बता दिया था, शेख रशीद साहब ने बता दिया था कि कोरोना से पहले हम डिफॉल्टर होने के करीब थे। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अब शेख रशीद साहब से कोई पूछ सकता है, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आज आप देखें कि जो 3 दिन पहले आपका आटा 1610 रुपए किलो था, मन था, वो 1850 रुपए मन हो चुका है। अब गरीब किधर जाए? वो चीनी जो 52 रुपए किलो थी वो 90 रुपए है, कमीशन बना, रिपोर्ट आई, अब गरीब के लिए कुछ तो करना है। बिल्कुल जिंदगी पहले है, हमने भी ये बात की थी कि जिंदगी को बचाना है, लेकिन इचरा मार्केट देख ले, आजम मार्केट देख ले, अनारकली आ जाए, ये साथ ही मार रोड है, गड़ी चौक चले जाए। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अवाम को एसओपीज पर अमल करना चाहिए, लेकिन अमल दरामद तो आफ्टर ऑल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, डीसी साहब और डीपीओ साहब की जिम्मेदारी होती है, हुकूमती मशीनरी हमें नजर आनी चाहिए, वो नजर नहीं आ रही। आज सरसद हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर हाफिज साहब की डेथ हो गई है, 25 से ज्यादा डॉक्टर अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, 2000 से ज्यादा डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो कोरोना के मरीज हो चुके हैं, 1800 मौत हो चुकी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि डे बाई डे जो सैंपल टेस्टिंग लाहौर में गवर्नमेंट ने करवाई, सर ये राणा साहब, मैं अगर एक बात को आवाम तक, आज एक्सपर्ट्स ने कहा कि वो 23 लाख के करीब हैं। ये सारी फिगर्स हम देख रहे हैं राणा साहब, लेकिन मैं आपसे जो अब एक चीज पूछना चाह रहा हूँ उस्मान रजा साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, ये राणा साहब जो बात कह रहे हैं ये हम सबका भी सवाल है कि अब एसओपीज पर अमल दरामद कैसे होगा? आपने जुर्माना किया बड़ा अच्छा, जो हमने सुना कि ड्राइविंग के वक्त भी मास्क पहनना लाजमी है, यानी मुझे तफसीलन अगर आवाम तक हम पहुंचा सकें कि कितना जुर्माना होगा अगर एसओपी से अमल दरामद दुकानदार पर, मार्केट पर, ड्राइविंग के दौरान या इस पर जहां पर भी क्राउडेड प्लेस है जहां लोग जमा हो रहे हैं, जुर्मानों की तफसीलात क्या है, क्या कार्रवाई आप करेंगे? उस्मान साहब। देखिए खान साहब, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि मुझे जुर्मानों के, अभी मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ तो मुझे एग्जैक्ट उसका फिगर नहीं पता। राणा साहब तो कह रहे हैं 500, मेरे इल्म में है 500, लेकिन क्योंकि मैंने वो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, और जब क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन उसका पढ़ा नहीं अभी तक कि एग्जैक्ट फिगर क्या है, तो इसलिए मैं आपको अपडेट नहीं कर रहा हूँ, तो इस पर मेरी माजरत कबूल कीजिए। लेकिन मैं एक मुझे बात अभी समझ नहीं आई कि राणा साहब ने इतनी लंबी तफसील में चले गए, ये हुआ, मुझे इनकी किसी पॉइंट की समझ नहीं आई। अगर तो ये समझते हैं ये मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है ना जी, उसको 2 टोक लफ्जों में बयान करें। मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है? मुकम्मल लॉकडाउन चाहती है, कर्फ्यू चाहती है, जो हम एक नरमी का रखा हुआ लॉकडाउन ये चाहती है। मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है? अगर ये कहते हैं एसओपीज पे अमल करें, इनको पूछे कल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो तमाशा लगा है तो एसओपीज कहाँ चलेगी आपकी? जब मियाँ साहब वहाँ से आए एयरपोर्ट के अंदर, एसओपीज आप कहाँ चलेगी? वहाँ केक काटा आपने, वो एटमी धमाके किसी ने किए, वहाँ पे आप एक मेहमान एक्टर थे, उसका केक काटा, वहाँ पे एसओपीज कहाँ चलेगी? असल में मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून को इस टाइम एक ही मसला है, वो है नैब का। इनसे को नैब का सवाल पूछें, वहाँ से भागना कैसे पूछें, इनका एसओपीज कोरोना इनका कोई लेना देना इससे नहीं है। लेकिन मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि ये फिगर बताना, हमने सलाम किया अपने पैरामेडिक्स को जिन्होंने फ्रंट लाइन के ऊपर लड़े हैं। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की मुआशरत ने, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस ने कोरोना के आगे घुटने टेके हैं। चीन से ये वायरस निकला, आपके मुल्क के बिल्कुल हमसाये में, आज आपकी अमवात
बुरी बात है, एक बंदा भी पाकिस्तान का उसकी जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन 1800 है, जहाँ अमेरिका के अंदर ये तादाद जो है वो 1.5 लाख को टच कर रही है। खुदा के लिए अल्लाह की रहमत के बाद आपकी हुकूमत ने कुछ किया है, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं, हुकूमत पंजाब ने कुछ किया है, तभी 12 करोड़ का सूबा है वो आज अल्लाह के फजल के बाद महफूज है। सिर्फ यहाँ फिरका मलामती में बैठ गए जी, इतने ये हो गया इतना वो, इनसे पूछे कि इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। इन्होंने कहा जी इजलास बुलाएं असम्बली का, हमने इजलास बुलाया, सारे का सारा वक्त इजलास के अंदर नैब गर्दी, शहबाज शरीफ, टीटियां, इनका कोई ना पाकिस्तान इनके मतमा नज़र है, ना इनकी कोरोना इनके मतमा नज़र है। राना साहब से बड़ी माजरत से मेरे भाई हैं, अब ये तो मेरी तरह एक कारकुन है ना जी, इनकी पार्टी का एक ही लाया अमल है कि जो करप्शन की गई है उसके तहफ़्फ़ुज़ के SOPs क्या होने चाहिए, इसके अलावा इनको किसी बात का पता नहीं है। अगर SOPs की बात करते हैं मॉरली फिर स्टैंड करें। अगर ये हाई कोर्ट में मौजूद नहीं थे और उस धक्कम पेल के अंदर जिसमें ये कहते हैं जी वो कोरोना शहबाज शरीफ को 2 बंदे लेने जाए नैब के तो कोरोना का खतरा है, लेकिन यहाँ 4000 बंदा इकट्ठा करके रात को फोन करके लेके आए, कोई SOP नहीं है। इसलिए इनका मॉरल स्टैंड SOP के ऊपर बात करने का इनको चाहिए था। मुश्किल वक्त है ठीक है। अच्छा, मैं इनको चाहिए था, मुश्किल वक्त है, ये अपने अमल से साबित करते हैं। ये तो चल नहीं हुआ, ये तो पॉलिटिक्स होती रही, कंट्रीब्यूशन है बार-बार, लेकिन ये पॉलिटिक्स हो रही है, अभी भी चल रही है, नैब और सारे मुकदमात की। मैं एक चीज, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, आपको खुशामदीद कहते हुए। डॉक्टर साहब, अभी फैसला या पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ही मौजूद हैं, ये कह रहे हैं सख्ती से अमल दरामद SOPs पे कराने के लिए कुछ सजाएं हैं, कुछ जुर्माने हैं जो अनाउंस हुए हैं। आप ये बता सकते हैं खतरा कितना बढ़ चुका है, जो केसेस की तादाद है जहां पर, और नंबर ऑफ बेड्स है, वेंटिलेटर्स है, जो हमारे पास फिगर्स मौजूद हैं, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो हुकूमत बता रही है, उसमें कुछ फर्क नजर आता है। मैं सिंध की बात कर रहा हूं, असल सूरत हाल क्या है और आप नाजरीन को, पूरी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कैसर साहब? देखिए, बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात सारी ये है कि अब आप कुछ भी कर लें शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो कौम को हो चुका है, और ये बीमारी बहुत तेजी से लोगों में फैल चुकी है। और ये काश कि ये इक़दाम जब हम डॉक्टर बोलते थे, अगर हुक्मरान हमारी बात सुन लेते तमाम डॉक्टरों की, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि हुक्मरान ने ट्रांसपोर्टर की सुनी, हुक्मरान ने बिजनेसमैन की सुनी, दुकानदारों की सुन ली, रेलवे वालों की सुन ली, लेकिन नहीं सुनी तो डॉक्टर्स की नहीं सुनी। और अब हमारी परेशानी ये है कि इस वक्त सफान अभी सूरत हाल ये है कि अस्पतालों के अंदर जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग एडमिशन नहीं कर रहे हैं, लोग वापस कर रहे हैं मरीजों को। अस्पताल वाले कह रहे हैं कि हमारे पास इस मरीज को वेंटिलेटर पे रखना है, लेकिन हमारे पास वेंटिलेटर अभी मौजूद नहीं है। लिहाजा ये सिचुएशन हमें देखनी पड़ेगी कि जो माइल्ड केसेस है उसमें तो बेड अभी थोड़ी बहुत है, लेकिन जो क्रिटिकली इल पेशेंट है उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये एक बहुत सीरियस बात हो गई है। मैं समझता हूँ कि आवाम से मैं कहूँगा कि चूंकि हुक्मरान ने, गवर्नमेंट ने आप पे जिम्मेदारी डाल दी है, तो आपने पहले आपने डॉक्टर साहब बात की शुरू में कि आपने कहा है कि जो अब हो गया वो हो गया, अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। मतलब क्या, अब अगर लॉकडाउन सख्त कर दें और अगर मार्केटें बंद करें और जुर्माने आयद करना शुरू कर दें फेस मास्क ना पहनने वाले पर, ड्राइविंग के वक्त या क्राउडेड प्लेसेस में जमा इज्तिमा के ऊपर, तो अब कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी जो इक़दाम किए जाएंगे उसका असर जो है वो 8-10 दिन के बाद हमें पता लगेगा, ठीक है। लेकिन जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, वो तो हमें अब मरीज को तो देखना होगा। नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, लेकिन यकीनन जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं और जब भी शुरू करते हैं उसका असर अच्छा ही पड़ता है। लेकिन अगर आप अच्छा काम देर से करते हैं तो यकीनन कुछ थोड़ा बहुत तो नुकसान तो होता है। वही ये बात हो रही है कि आवाम को हमने छोड़ दिया। पाकिस्तान में कौन कानून को फॉलो करता है? ट्रैफिक कानून कितने लोग फॉलो करते हैं? लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये अब हुक्मरान को सख्ती से अगर इन्होंने किया और ईमानदारी के साथ ये SOPs को फॉलो कराया गया, तो मैं समझता हूँ कि शायद आगे चल के हमें इसका फायदा होगा। आगे चल के यानी 8 से 10 दिन बाद फायदा हो सकता है, अभी फिलहाल नहीं। और बेड्स की आपने सुना डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब जो कह रहे हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से। उस्मान साहब, मैं मतलब क्योंकि हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए आप पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुझे बताइए कि ये डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारी सुनी जाती अगर, ना कि दुकानदारों की, ना कि बिजनेस कम्युनिटी की, तो आज शायद हालात बेहतर होते और हमें इन SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्ती ना करनी पड़ती। लेकिन डॉक्टर्स की सुनी नहीं गई, ऐसा क्यों हुआ उस्मान साहब?
खान साहब, मुझे थोड़ा सा इस पे अफसोस हुआ डॉक्टर साहब की, मैं बात सुन रहा था। मैं तो ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है। मैं आपके सामने हकायक रखता हूँ। देखिए, बात करना एक तरफ है, हकायक से उसको दलाइल से साबित करना चाहिए। जब मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स की नहीं सुनी गई, पहले तो डॉक्टर्स को ये बताना चाहिए और इस हुकूमत के हमारे इस बयानिए को इंडोर्स करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के अंदर सेहत और तालीम कभी किसी हुकूमत की प्रायोरिटी रही है? क्या पंजाब वो सूबा नहीं है जिसकी 12 करोड़ आबादी है, जिसको मैं आप रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? आज जब मेरी हुकूमत है 750 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे कबाड़ा हैं, 1784 वेंटिलेटर्स हैं इस पंजाब के अंदर जिसकी 12 करोड़ आबादी है, जिसके अंदर हॉस्पिटल नहीं बनाए गए, जिसके अंदर डॉक्टर्स भर्ती नहीं किए गए, जिसके अंदर जंगला बसें आपको नजर आएंगी। 500 अरब रुपया सियासी शोबदाबाजी के मंसूबों पर लग गया है, लेकिन आप देखें कहीं तहसील हॉस्पिटल काम नहीं कर रहे। जहां तहसील हॉस्पिटल है डॉक्टर नहीं है, जहां डॉक्टर है वहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस के अंदर, राम साहब एक मिनट सर, मैं अपनी बारी पे, गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस के अंदर हमने आज, आप खुद ही डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आज अमवात जो है 1800 हैं। देखिए, पाकिस्तान 23 करोड़ के आबादी का मुल्क है। आपकी हुकूमत की अल्हम्दुलिल्लाह इक़दामात को जो कोरोना के खिलाफ थे, WHO ने भी फर्स्ट टॉप 5 के अंदर रिकग्नाइज किया है। भाई डॉक्टर्स के साथ मुशावरत, हाँ, हर इंडिविजुअल डॉक्टर के साथ नहीं की है। मैं आपको बताऊं, मैं फ़ख्र से आपको बता रहा हूं कि पंजाब के अंदर हमने आज डॉक्टर यास्मीन राशिद जो रेलिवेंट तरीन खातून है उनको अपना मिनिस्टर बनाया है। आज कोई स्टेट एजेंट हमारा मिनिस्टर नहीं है कि जिसकी डिफेंस के अंदर एक तरफ वो घर और कोठियों का कारोबार करता है और दूसरी तरफ हमने उसको नवाजा हुआ है कि हमारा भी कारोबार देखना। आज राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट वापस आते हैं और इस बात को कंटिन्यू करते हैं। लॉकडाउन सख्त करने का फैसला हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ से। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ आप जान रहे हैं, आगे भी बात करते हैं और सूबों की भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ होगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात। सिंध हुकूमत क्या कहती है? मुराद अली शाह साहब की जानिब से भी आज CM सिंध की तरफ से नैब की पेशी थी, लेकिन कोरोना वायरस पर वफाक की हुकूमत की स्ट्रैटेजी पर उन्होंने कुछ कहा था। लेट्स हियर दिस। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरे मुल्क का सोच के और ख़ास तौर पे लोगों की जानों का सोच के अपने फैसले करने चाहिए। आपने सवाल किया, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर फेडरल गवर्नमेंट करती है। मेरी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, मुझे रिकॉर्ड निकाल के देख लें। जब भी NCC हुई है और उसमें अगर कोई गलत मैसेज दिया है तो मैंने उसको दुरुस्त करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे मेरा एक जुमला बता दें कि मैंने फेडरल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है या जो फैसला है उसके खिलाफ किया हूँ, तो मैं जिम्मेदार हूँ। फेडरल गवर्नमेंट के जो गुजरा कराची में आके करते रहे और बाकी चीज़ें हैं वो आप उनसे जवाब लें, मैं नहीं बनना चाहता। वज़ीर सेहत सिंध ने आज असेंबली के इजलास में कहा है कि वफाक चाहता है लाखों लोग कोरोना से जो है मुतासर हो जाएं। और अभी महकमा जो उस पर तर्जुमान है सिंध हुकूमत के मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी तरफ से भी ये बयान आया सामने कि ये जो पॉलिसी वफाकी के जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स आ रहे हैं पाकिस्तान, उनको बगैर टेस्ट के घर जाने दिया जाए, ये इस पर जो है सही नहीं है। उन्होंने सऊदी अरब की मिसाल दी है कि वहाँ से एयरलाइन 249 में से तकरीबन 130 से ज़्यादा जो मरीज़ उसमें आए कोरोना पॉजिटिव। इस स्ट्रैटेजी पर भी सिंध हुकूमत की तरफ से तनकीद की गई है। मैं राना साहब आपका मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। अभी उस्मान बसा साहब कह रहे थे, आप उसको कुछ कहना चाहते हैं? आपको अब क्या इस पर लगता है गलत है? जब लॉकडाउन सख्त होने जा रहा है, फिर क्या इस पर तब आपको तनकीद की गुंजाइश यहाँ पर है? नहीं, हमें कोई इतराज नहीं। हम कहते हैं कि यहाँ पर जो कन्फ्यूज सिचुएशन है वो कोरोना के मरीजों की बढ़ने का सबब बनी है और कोई और नहीं। डायरेक्ट मुल्क के वजीर आजम की सीट पर इमरान अहमद खान न्याई साहब ही फरमा रहे हैं। और जो मराज शाह ने बात की, एक मुल्क के सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो वहां पर कोरोना की बात करता है, नैब जरूरी है। और अगर शबाशी बतौर अपोजिशन लीडर बात करता है तो नैब जरूरी है। 2 जून को बुलाते हैं, हम हाई कोर्ट में जाते हैं, नोटिस जारी होते हैं, तो जो वारंट वहां पे आता है वो 28 मई का सिग्नेचर उस पर थे। तो यहां नजर तो आता है, अगर तो नैब के चेयरमैन साहब साहब करें, में कोई इतराज नहीं। ना तो इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर को केस पे उनको कॉल करेंगे, ना वो मालूम जब्बे वाला केस बुलाएंगे, ना वो परवेज खट्टर को पूछेंगे, ना महमूद खान को पूछेंगे, ना फिर
आटा चीनी जहांगीर तरीन सर, मैं कोरोना पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, राणा 300 साहब। अरब का डाका मारा सरेआम। 52 रुपए की चीनी थी 90 रुपए हो गई है जी। शायद कराची में 52 रुपए हो। राणा साहब, लेकिन जहां तो SOPs मेरे और कोरोना पर अगर हम बात करें, फिर नया डाका जी मैं बात कर रहा हूं, गरीब मर रहा है जी। महंगाई से और कोरोना से। और कोरोना तो अल्लाह ताला हमें रिलीफ दिया और मैं समझता हूं कि बचत है। बाकी अगर आप कंपैरिजन करें दिगर कंट्रीज की, यूरोपीय कंट्रीज, किस तरह से बचत? और ये अल्लाह ताला का करम है। आज कोई काम नहीं है, अल्लाह देखें के करम के जो गरीब के लिए आटा 1610 रुपए का था, वो माशाल्लाह हुक्मरानों ने 1800। नहीं, ये जो बचत वाली बात आपने की है, अल्लाह का करम है, बेशक करम है, लेकिन राणा साहब किस लिहाज से आप कह रहे हैं अमवात कम है, इस लिहाज से कह रहे हैं जो रेट है मोर्टेलिटी वो कम है, किस लिहाज से बचत हुई है आप बता सकते हैं? मैं समझता हूँ ये कुफ्ते मदाफत अल्लाह ताला ने पैदा की है, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं। अच्छा। अगर गवर्नमेंट का कमाल कोई होता तो फिर मैं अर्ज करना चाहता हूँ हमें कोई नजर आता। कोई SOPs नहीं है, ट्रांसपोर्ट खोली, अमल नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर्स अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं अपने डॉक्टर्स को जो कौम के मसीहा है उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज मरीज बढ़ने का जो डॉक्टर्स ने बात की, जो एक्सपर्ट की बात की, जो अपोजिशन लीडर ने बात की और डेटा छुपाया जा रहा था, आज वो साबित हो गया कि गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। खान साहब स्पोक पर्सन की मीटिंग करते हैं, करते रहे, में कोई इतराज नहीं, लेकिन गरीब किधर जाए? गरीब के मुंह से रोटी का नवाला छीन लिया गया। सीमेंट 450 रुपए की बोरी थी, वो 550 रुपए की हो गई। ये जो महंगाई है, ये कोरोना के साथ अटैच गवर्नमेंट ने की है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज अगर तो ये पार्लियामेंट का इजलास है, वहां पर अगर तो ये कोई तरजीहात तय करना चाहते हैं तो हम अपोजिशन बिल्कुल हाजिर हैं कि कोरोना पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन थ्रू आउट फेडरल और सूबों के देख लें कि उन्होंने अपोजिशन और सिंध गवर्नमेंट को रगड़ा देना था। आप देख लें कश्मीर में अमवात कम क्यों है? वहां का वजीर आजम ने अपना PM हाउस जो है वो क्वारंटीन सेंटर बना दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में अमवात कम क्यों है? वहां पर मरीज कम क्यों है? गवर्नमेंट की जो तरजीहात हैं ये मैं समझता हूं बिल्कुल आपकी तनकीद ये कि हैंडलिंग बेहतर हो सकती थी। मैं एक वजाहत में चाहूंगा डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब आप भी करें, क्योंकि ये बात के यहाँ पर इस वक्त करम हुआ है या मोर्टेलिटी रेट कम है निस्बतन भारत या निस्बतन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके या दीगर एशियन ममालिक के, ये फिगर्स तो कहती हैं है, लेकिन क्या आप इस पर समझते हैं कि वाकई में ये कम है? तो किस वजह क्या है इसकी, और अव्वल में हम कह भी सकते हैं कम है या नहीं है? डॉक्टर साहब देखिए, मैं बहुत माजरत से ये बात करता हूँ कि हम अफसोस की बात है कि हम इस कमी के ऊपर ही बात कर रहे हैं। आप उस घर से पूछिए जिस घर में किसी की मौत हो गई है कोरोना की वजह से, चाहे एक आदमी भी इंतकाल कर जाए, ये तो बहुत बड़ी बात होती है ना। यहाँ 1700 से ज्यादा लोग मर गए हैं, तो ये तो हमें अफसोस करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये भी लोग नहीं मरते अगर हम प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनाते, ये बेहतर होता। लेकिन हम हमेशा दूसरे से कंपेयर करके और हम इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करके कि हमारे यहाँ कम है, ये खुदा ना खास्ता हम ठीक कह रहे हैं कि चले ठीक है, हम मान लेते हैं कि कम है, लेकिन फिर ये अमवात जो बढ़ते चले जा रहे हैं, ये जिसकी हम निशानदेही कर रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हमारे नंबर कम है, लेकिन ये आगे बढ़ेंगे अगर आपने प्रॉपर एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाए। लेकिन वो चीज जब नहीं हुई तो अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है हमारे रोजाना के बेसिस पे 4000 से ज्यादा केसेस आने शुरू हो गए हैं। लोग जो है जो कि 8-9 मरते थे, हमारे यहाँ इंतकाल करते थे, अब 70, 80, 90 की तरफ जा रहा है ये फिगर। तो ये तो हमें सोचने की बात है। इस पे ये कह के हम अब मुतमईन हो जाते हैं और फिर ये बातें सुन के अवाम मुतमईन हो जाती है कि जी हमारे यहाँ तो बहुत ही लो कैटेगरी का कोरोना है, कोई बात नहीं है। इसका मतलब है कोई परेशानी की बात नहीं है। लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को कंफ्यूजन दूर करनी पड़ेगी कि खुदारा ये समझ लें कि कोरोना वायरस एक हकीकत है और ये जानलेवा साबित हो रहा है, और पाकिस्तान में भी जानलेवा साबित हो रहा है। और पाकिस्तान का जो हेल्थ का निज़ाम है वो अब बहुत ही करीब आ गया है प्रॉब्लम के लिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। लिहाजा हम आवाम से दरख्वास्त करते हैं, सब मिलके, मैं समझता हूँ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके तमाम लोग ये रिक्वेस्ट करें मिलके, ये खुदा के वास्ते एक हो जाएं
एक होके कोरोना से फाइट करें बजाय ये कि और आपस की फाइट उस्मान साहब, आपका भी लास्ट कमेंट में इस बारे में कि आप हुकूमत के लेवल के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पंजाब हुकूमत की काविशें या कोशिशें क्या हैं, ये भी अगर इस पर रोशनी डालते जाए लास्टली। अच्छा खान साहब, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि हम इस पे थोड़ा सा, जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा, देखिए हमें एक चीज़ के ऊपर फैसला करना है। देखिए हम तो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, राना साहब भी कहते हैं डॉक्टर साहब माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी है, इज ए डॉक्टर, तो इसमें तो गुंजाइश कोई नहीं। दूसरी बात की आप भी माशाल्लाह वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, आप चीज़ों को जानते हैं। देखिए इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम सेहत और निज़ाम तालीम दो वाहिद निज़ाम है जिसके ऊपर 72-73 साल में किसी हुकूमत ने कभी